Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 10 part 1. So let's begin. See, in this lecture we'll be discussing all the things that you can see right there on your screen because आपका जो ये topic 10 है इसके कुछ अलग सब टॉपिक्स नहीं हैं. इसके अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है. सो बेसिकली वट एवर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, विच encompasses the human growth, development, stages of growth, then factors affecting growth and development, and at the end we'll be discussing about the aging and senescence. ये क्या होते हैं और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, that is the theories and other parts that you can see in the syllabus itself, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. एंड द वे वी आर गोइंग टू कवर इज ऑफ कोर्स लाइक इट्स प्रीटी सिंपल. जो भी आपका सिलेबस है हम वो तो सारे एक एक पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ विल सी सम वैल्यू एडिशंस इन बिटवीन एज वेल. ऑलराइट. सो सबसे पहले इफ़ यू जस्ट हैव टू ग्रैब सम background or like what we are going to study further, तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि when we talk about us like as a human being, and since it's like mentioned human growth and development, so that is why we'll keep ourselves restricted to the human growth and development only. Although अगर आप देखेंगे तो ये growth और development का जो concept है, it is purely applicable to many other living organisms, may it be your plants, may it be the animals, reptiles, anything, right? So अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ मोस्टली अ लाइफ लॉन्ग process of your physical, behavioral, cognitive and emotional growth and change. That means when you talk about human development, so it has like many things to take into consideration. And please don't get confused with this human development index जो कि आता है. उसके जो पैरामीटर्स हैं हम केवल उसके बेसिस पे जज नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज उसके अंदर आपके एजुकेशन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं. एंड हियर व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इन जनरल, तो ऑफकोर्स इट इज़ नेसेसरी कि आपका बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल ग्रोथ हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट a person who's getting education only will be having all these kind of an emotional, behavioral or cognitive changes. इसीलिए आप उसको उससे अलग रख के देखें थोड़ा सा. That's just one point for you to remember. और ह्यूमन ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं. आप ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दो वर्ड्स हैं एंड समटाइम्स वी जनरली टेंड टू यूज देम इंटरचेंजेबली. बट हमारा पर्पस ये है in the first part of this lecture is to understand like what is human growth and what is human development. So what we are going to do in the next few minutes is to understand what is growth, then to understand what is development, and then to compare both of them. और इनके अंदर और कौन कौन से चीज़ें हमें फैक्टर इन करनी है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो सबसे पहले अगर आप ग्रोथ की बात करें, because as you can see I have already written out here like most of the people use the term growth and development interchangeably, राइट. क्योंकि ये इतने सिमिलर से लगते हैं तो हम इनको जनरल रोज़ की बोलचाल की भाषा में हम उतना ध्यान नहीं देते. बट हियर व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द एग्जामिनेशन वी नीड टू नो अबाउट कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है. सो अगर आप ग्रोथ की बात करें तो इट्स मोस्टली टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एन फिजिकल इंक्रीज in some quantity over time. That means when you can look at your pictures when you were like 1 year old, आप अपने फर्स्ट बर्थडे का पिक्चर देखिए and like look at your picture right now, so you will see some kind of an quantitative changes, right? आपकी हाइट बढ़ी है, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रोथ, right? And it includes changes in terms of height, weight, body proportion and general physical appearance. And there are certain different definitions also, in which the Encyclopedia Britannica, it defines the growth as an increase in size or the amount of the entity. यानी कि आप प्लांट की ग्रोथ की बात कर ले तो प्लांट का भी आप देखते हो साइज बढ़ता है, देन यू कैन से लाइक इट इज़ ग्रोइंग, राइट. वी यूज दैट टर्म, वी डोंट से लाइक प्लांट इज़ डेवलपिंग. वो मतलब वैसे तो सही होगा बट टेक्निकली अगर आप बात करें तो दैट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज. तो समटाइम्स यू नीड टू ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द लिटरल इंग्लिश मीनिंग, राइट. एंड
चाइल्ड की ग्रोथ भी जब आप बात करते हो तो जब चाइल्ड की हाइट वेट ये सारी चीज़ें बढ़ती है देन यू कैन से कि ग्रोथ हो रही है. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो माइट हैव सीन स्पेशली इन दी एड्स विच इज़ स्पेशली फॉर दी न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग कि आप बॉर्नवीटा पियोगे तो आप जल्दी बड़े होगे. तो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एज वेल एज द डेवलपमेंट. वो दोनों को कंबाइन करके बात करें क्योंकि आपकी हाइट भी बढ़ेगी और जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर वो क्या क्या एस्पेक्ट्स है जो बॉर्नवीटा या उसके जैसे और भी अदर जो आपको ड्रिंक्स बताए जाते हैं उसका वो दावा करता है. आई एम नॉट टेलिंग कि उससे होता है या नहीं होता, आई डोंट नो. बट हाँ, वो जो भी चीज़ें बताते हैं दैट इज़ इनकम्पासिंग ऑल दीज थिंग्स. ग्रोथ और डेवलपमेंट इसी के ऊपर फोकस होता है, राइट. और आपके बॉडी में लाइक द वे वी ग्रो सो देयर इज अ सर्टन हार्मोन्स विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट यू कॉल एज द ग्रोथ हार्मोन. और ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी नेचुरली सिक्रीट करती है. और आपने ये भी सुना होगा लाइक दीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एच जी एच को मोस्टली लाइक एथलीट्स भी कभी कभार लेते हैं टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस. इससे उनकी मसल ग्रोथ होती है और बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स है जो उनको ज़रूरी होते हैं फॉर दी स्पोर्टिंग इवेंट्स वो उनको इन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से मिलते हैं. ऑल्दो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में नेचुरली सिक्रीट होता है. और आप देखेंगे कुछ लोगों की हाइट जनरल लोगों से कम होती है. लाइक अगर बच्चा 16 साल का है तो एक जनरली उसकी जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है तो देन द डॉक्टर माइट सजेस्ट कि इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है एंड दे कैन प्रिस्क्राइब सम और दी अदर थिंग्स दैट दे नीड टू डू, राइट. तो ये एक नेचुरली प्रोसेस भी होता है. बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैड जस्ट राइट नाउ इज कि जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो यू आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव थिंग. क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको आप क्वांटिटी में नाप सके, ठीक है. 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या फीट 1 फीट 2 फीट वट एवर लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट या केजीज में बात करें आप वेट की तो आपको वो नाप सकना होना चाहिए. मतलब यू विल बी एबल टू मेजर इट, राइट, क्वांटिटेटिवली. और ग्रोथ की कुछ डेफिनेशंस है दैट इज बीइंग गिवन लाइक वेरियस अदर बाय वेरियस अदर स्कॉलर्स आई वुड से बिकॉज आई कांट से कि इनमें से कौन डॉक्टर थे कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. बट आपको चाहे तो ये जो डेफिनेशंस है आप इनमें से कुछ डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा एंड दैट डेफिनेशन दैट यू कैन यूज वाइल डिफाइनिंग ग्रोथ along with the concepts that we have studied just right now. And I don't think in sabhi ko ek karke I need to explain to you, so you can just like pause the video and have a look at it, or while preparing the notes you can write it down. Then अगर आप बात करें about the development, so development is a qualitative change and this is a continuous process through which the physical, emotional and the intellectual changes occurs, and it is a more wider and a comprehensive term than growth, right. So and it is also possible without growth. So if you have to develop understand the concept of development, so development हमने growth की बात करी, that is a quantitative change. वहीं development is a qualitative change और ये growth के बिना भी हो सकता है. So that means कि आपके body में कुछ ऐसे certain emotional, intellectual और जो भी physical changes आते हैं throughout the like process in your lifetime, that is termed as development, right. और आप वेबस्टर डिक्शनरी की बात करें तो उसमें डिफाइन किया गया है द सीरीज ऑफ चेंजेस which an organism undergo in passing from an embryonic stage to the maturity, and this development include all those psychological changes that takes in the function and activities of different organs of an organism. So if you just take an example of the way your brain functions, right, or the way your brain commands for you regarding certain emotions, तो आप देखेंगे उसमें आपको एक कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिलता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम. once you started feeling ki like okay when I was a teenage I really behaved in a very absurd manner. आपको आज के टीनेजर्स को देख के शायद ये लग सकता है बिकॉज यू नो दैट देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल चेंजेस दैट हैज हैपेंड टू यू, राइट. और वो जो चेंजेस है दे आर मोस्टली इन अ अपवर्ड कर्व ओनली. आप ये नहीं कह सकते कि वो चेंजेस कहीं डाउनवर्ड ग्राफ में जा रहा है. इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स एन अपवर्ड ट्रांजेक्टरी ओनली. और क्यों बोला गया है दैट इट कैन ऑकर विदाउट ग्रोथ, बिकॉज हमने देखा ग्रोथ इज मोस्टली इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है एंड लाइक आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है. बट ऐसा भी हो सकता है फॉर सम पीपल बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, चाहे वो जेनेटिक हो सकता है, चाहे कोई और दूसरा रीज़न हो, न्यूट्रिशनल हो सकता है, उसकी वजह से उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा ना हो. बट अदर जो ग्रोथ आप बात करते हैं जो कि इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल है वो ग्रोथ उनकी प्रॉपरली
हो रही है. और यहाँ पे फिजिकल से ज़्यादा लाइक फिजियोलॉजिकल चेंजेस वुड बी लाइक मच बेटर वर्ड टू से. और यहाँ के अंदर भी आप देखेंगे कुछ डेफिनेशंस है, लाइक स्किनर डिफाइंड डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूअस एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस. वहीं क्रो इन 1965 defined development is concerned with growth as well as those changes in behavior which result from the environmental situations. Thus, development is a process of change in growth and capability over time due to function of both maturation and interaction with the environment. Now, areas of development क्या क्या हो सकते हैं? So it can be your physical development, your cognitive development, your social development, your emotional as well as moral development. So this is again not a very exhaustive list. आपको अगर और चीज़ें लगती हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कि इन एरियाज में डेवलपमेंट होता है फॉर ह्यूमन बीइंग. अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, सो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड, इफ़ यू सी द चाइल्ड, ऑब्जर्व अ चाइल्ड, जो बच्चा 2 महीने का होता है, फिर 3 महीने, 4 महीने, तो आपको बच्चे के हर एक स्टेजेस पे कुछ ना कुछ सर्टन चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटी दैट द चाइल्ड इज डूइंग. एक टाइम पे बच्चा धीरे धीरे खिसकना शुरू करता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, देन द चाइल्ड स्टार्टेड स्टैंडिंग, देन ही स्टार्टेड लाइक स्टैंडिंग फ्रीली, देन ही स्टार्टेड वॉकिंग, देन ही स्टार्टेड लाइक रनिंग. तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट. सो इफ़ लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, अगर आप ग्रोथ को एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, और वहीं अगर आप डेवलपमेंट को फिजियोलॉजिकल तरीके से देखें, ठीक है, फिजियोलॉजिकल तरीके से अगर आप देखें और ग्रोथ को एनाटॉमिकल तरीके से देखें. अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अगर आपको डिफरेंस क्लियरली नहीं पता हो तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ. अगर आप बात करते हैं कि आपकी ब्रेन की एनाटॉमी, मतलब ब्रेन में आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को आप एज इट इज़ जानते हैं, लेकिन वो पार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, दैट इज़ बेसिकली योर फिजियोलॉजी. और वो पार्ट क्या क्या है, दैट इज़ बेसिकली योर एनाटॉमी, राइट. सो उसी तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट या फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट के अंदर, तो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे चाइल्ड बढ़ तो रहा है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, साथ ही साथ उसमें जो फंक्शनिंग चेंजेस है वो भी आते जा रहे हैं. तो आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अगेन, एक बच्चा पहले तो जब वो बहुत छोटा होता है, ही डोंट गिव अ डैम की who's there in and around the child. फिर धीरे धीरे the child started recognizing the mother, the feel of the mother, the touch of the mother. फिर बच्चा अपने आसपास के जो जानने वाले लोग हैं उनको देख के मुस्कुराता है. then if he or she saw someone who's very strange to him or her, तो द चाइल्ड माइट स्टार्टेड क्राइंग. तो ये कुछ मतलब आप टिपिकल ट्रेट्स देखेंगे. दैट इज़ बेसिकली द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट भी होता है जिसके अंदर द चाइल्ड स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद अदर्स. तो ये भी एक टाइप का ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ डेवलपमेंट ही है. देन योर इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट जब बहुत सारी चीज़ें होती है, व्हेन अ चाइल्ड गेट अटैच टू समथिंग, व्हेन अ चाइल्ड माइट फील jealous on the arrival of a new baby in the family. और ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट. मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, अच्छे बुरे की जानकारी, लाइक व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और इवन द कंसेप्ट ऑफ फियर इज ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड कि ऐसा कर लो वो हो जाएगा, वैसा कर लो ये आ जाएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. सो दैट इज़ वॉट, ये आप नोट कर लीजिए. ग्रोथ इज एन एनाटॉमिकल फेनोमेना एंड डेवलपमेंट इज बिहेवियरियल एंड मोर ऑफ एन फिजियोलॉजिकल फेनोमेना. ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, आई हैव रिटन इट डाउन हियर so that like those who are having confusion, they will be able to clarify. Now here you can see the kind of an comparative analysis between the growth and the development. So growth is an anatomical changes, whereas development refers to the overall change in the individual, and it involves the changes in an orderly and a coherent type towards the goal of maturity. ये quantitative है and this is your qualitative along with the quantitative aspect. ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट है इट कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि डेवलपमेंट में हमने देखा बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, राइट. एंड दिस ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, बट डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव. दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू कि ये हमेशा ग्राफ मोस्टली आपको अपवर्ड ही जाते हुए दिखेगा. As a teenager and as a person preparing for UPSC right now, you must be having some kind of a more emotional and emotional quotient, if not the like drastic rise in the IQ, right? And growth occurs due to the multiplication of cells. Development occurs due to both maturation and the interaction with the environment.
ये सेल्यूलर है मोस्टली, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. दैट मीन्स जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है, डेवलपमेंट इज अ मोर ब्रॉडर फिनोमेना, राइट? And growth may be referred to describe the changes in a particular aspect of the body and the behavior of an organism, whereas your development describe the change in the organism as a whole. और भी ये सारी चीज़ें हैं, आई विल नॉट लाइक गो ईच एंड एवरी वन ऑफ इट, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट लेट्स सी सम पैटर्न्स दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई माइट लाइक इंटरचेंजेबली यूज दिस टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज हमने ये भी देख लिया है कि जनरली जैसे हमारी बोलने की आदत होती है, वी टेंड टू यूज़ देम इंटरचेंजेबली, इसलिए अगर ऐसा हो जाए तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद एनीथिंग, राइट? सो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपका यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, principle of uniformity pattern. Although growth does not proceed at a uniform rate and shows marked individual differences with regard to the process and outcome of the various stages of development, yes, yet it follows a definite pattern in one or the other dimension which is uniform and universal. That means कि अगर आप एक 2 साल के बच्चे को देखें, 5 साल के बच्चे को देखें, 10 साल के बच्चे को देखें, सो यू कैन नॉट से लाइक ऑल द 2 year kids, 5 year kids and the 10 year kids will show the same amount of growth. It has like various other factors that should be considered. उनकी न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरीके से पूरी हो रही है. Like there are also various genetic traits that plays an important role in the growth, right? और दूसरी बात ये है कि उसकी जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके की है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी है, दैट ऑल्सो डिफाइंस कि आपका ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, राइट? बच्चे जो खेलते कूदते हैं वो उनकी ग्रोथ, और जो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं उनकी ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करती है. सो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि यू कैन हैव लाइक the sure short thing, like a 2 year kid should be like a certain centimeters tall and a 5 year kid should be certain centimeters tall. ऐसा नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग वेरिएंस होते हैं, बट एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है कि हाँ इतना तो ग्रोथ होगा ही, इस तरीके का ग्रोथ होगा, मतलब एक सर्टन पैटर्न तो फॉलो किया ही जाएगा, राइट? ये चीज़ें होती हैं और ये हम सब ने भी ऑब्जर्व करी है अपने आसपास के लोगों में, और इवन समटाइम्स खुद के अंदर भी आपने देखा है, ठीक है? सो दैट यू कैन बी कंसिडर्ड अंडर द ग्रोथ कर्व. अब ये ग्रोथ कर्व क्या होता है? सो ग्रोथ कर्व बेसिकली एक आपके सिग्मा शेप का कर्व होता है, एंड दैट शोज कि कैसे कैसे एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट किस तरीके से ग्रोथ पैटर्न आगे बढ़ता है. And there is a specific period in a child life when the rate growth accelerate and deaccelerate. आपने देखा होगा कि एक certain adolescence age पे आपकी growth काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, because उस टाइम के आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ बिल्कुल शूट अप कर जाती है. बट एक सर्टन टाइम आता है, एक सर्टन पीरियड के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइक हाइट एंड सो. अभी के टाइम में आई एज्यूम कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपकी जो हाइट है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल हाइट, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है, राइट? सो देयरफॉर द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोड डाउन टिल द बॉडी इज बॉर्न, एंड इन द अर्ली पोस्ट नेचुरल पीरियड द वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ इज हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड देयर इज अ स्टीडी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द मिड चाइल्डहुड. ये सब हमने देखा है कि छोटे से बच्चे होते हैं, लाइक द day when they are born, and just after like 1 month on the same day you will see a drastic increase in the size of their body, right? बहुत सारी changes आते हैं आपको, बहुत prominent उनके जो facial जो भी आप कह सकते हो traits होते हैं वो बहुत easily आप देख पाते हो in compare to the very first day when the child is born, right? अब ये growth curve किस तरीके का होता है? So it shows something like this. तो आप इस ग्रोथ कर्व को देख सकते हैं. इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ होता है जब बच्चा छोटा होता है, एंड वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बिकॉज ये फर्टिस से डेवलप होकर एक इन्फेंट तो बना ही है जब वो बच्चा फिर दुनिया में आता है, जन्म लेता है. सो दैट इज़ वाई इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड देन रैपिड ग्रोथ होता है, फिर चाइल्डहुड में ग्रोथ धीरे से स्लो होती है, देन अगेन एडोलेसेंस में आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, फिर एक मिनिमल ग्रोथ होती है, फिर जब ओल्ड एज आ जाता है तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव होती चली जाती है, राइट? एंड ये जितने भी ईयर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इट में चेंजेस आपको कहीं पे ये 0 to 5 years दिख जाएगा, यहाँ पे 12 years दिख जाएगा, 18 years दिख जाएगा, उसमें उतना माइंड नहीं करना है. बट हाँ, एक ग्रोथ कर्व इस तरीके का सिग्मा पैटर्न फॉलो करेगा, दैट यू नीड टू नो, राइट?
नाउ योर ग्रोथ ग्रेडियंट. सो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के देखें, ग्रोथ तो हमें पता चली गया है क्या है. ग्रेडियंट की अगर आप बात करें तो ग्रेडियंट इज मोस्टली नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस. और सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट. सो हम टाइम की बात करेंगे कैसे टाइम के साथ कुछ चेंजेस आते हैं इन द ग्रोथ. ठीक है. सो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेपहैलोकाउडल. सो सेपहैलोकाउडल प्रिंसिपल का क्या मतलब है. अगर आप सेपहैलोकाउडल डेवलपमेंट या उसकी बात करें तो बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कैसे जो डेवलपमेंट है वो आपके हेड से लेके टो तक होता है. मतलब पहले हेड का डेवलपमेंट होता है पूरी तरह से, फिर धीरे धीरे आपका वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस करता है. सो इट मोस्टली प्रोग्रेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. ठीक है, इस तरीके से. एंड द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द हेड एंड द फेस. क्योंकि पहले आपका हेड में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, हेड की डेवलपमेंट हुई और फिर धीरे धीरे हेड की डेवलपमेंट एक बार पूरी हो गई वो डिक्रीज होता गया एंड आपके जो बाकी के पोर्शंस है बॉडी के उसकी डेवलपमेंट होती है. एंड दैट इज वाई बिफोर द चाइल्ड becomes able to stand, the child first gain control over his head and arms and then his leg. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से it is following this route, right? And this trend continue post-natal along in excess of increased growth from the head to the feet. And finally, in the adult, the head represent approximately 12% of the body length. But जब आप बच्चे की बात करें in the initial stages, then at that point of time, head acquires a very good amount of the entire body proportion that you can see over here in this chart. अगर आप body proportion को देखें तो यहाँ पे when there is a 3-month fetus, तो इस fetus को आप देख सकते हैं कि head portion कितना ज़्यादा बड़ा है in proportion to the entire body. वहीं this is the child at birth, यहाँ पे भी you will see the good amount of the portion is being occupied by the head itself. और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे ये जो head के growth है ये डिक्रीज होती जाती है, राइट. दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड कि हेयर डिक्रीज हो रहा है यानी कि ग्रोथ लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है. एंड दैट इज अगेन यहाँ पे एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है दिस एंड दिस इफ यू कंपेयर तो यू विल सी द कॉन्ट्रास्ट और द मेजर डिफरेंस कि आपको हेड यहाँ पे काफ़ी इन प्रपोर्शन टू द इंटायर बॉडी छोटा देखने को मिलेगा, राइट. सो दिस इज अबाउट दिस प्रिंसिपल दैट यू कॉल एज द सेपहैलोकाउडल. Then your another principle called is the proximodistal principle. अब ये proximodistal principle क्या कहता है आपके. So basically it says कि जो आपकी डेवलपमेंट है और द ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी आप बोलना चाहें. सो जो ग्रोथ है एक बच्चे की इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी. यानी कि अगर आप बच्चे को देखें लाइक दिस इज़ द चाइल्ड. सो इस चाइल्ड की अगर आप सेंटर की बात करें तो दैट यू कैन अकाउंट एज द नेक, द हेड, द स्पाइनल पोर्शन, राइट. और जब एक बच्चा इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाता है देन द चाइल्ड स्टार्टेड यूजिंग द हैंड्स, देन स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर द फिंगर्स और फिर उस फिंगर पे कंट्रोल करने के बाद द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रास्पिंग द थिंग्स. तो इस तरीके से होता है. आपने छोटे बच्चे को देखा होगा तो जनरली टेंड्स टू लाइक कीप कर्ल देयर फिंगर्स, राइट. वो अपने हाथों को भी हथेली को बिल्कुल खोल के नहीं रखते. धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं दे स्टार्ट ग्रास्पिंग द थिंग्स. जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ भी नहीं पाता. तो अगेन दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सीमोडिस्टल, राइट. और ये वाले पिक्चर में आप सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों ही को देख सकते हैं, दोनों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट है ये एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो करता है. यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. अब एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद उसकी एजिंग होती है एंड फाइनली द पर्सन डाइज, उस टाइम तक ये सारी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, राइट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी हियर. एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि जो भी हम ये प्रिंसिपल्स देखेंगे इट विल बी अ मिक्स ऑफ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम कहीं पे ग्रोथ यूज़ कर रहे हैं कहीं पे डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है. सो अगेन इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे. इट वुड बी लाइक वेरी मच क्लियर टू यू. सो इसमें एक जो बच्चा है दे फर्स्ट learn the finger movement and then learn the movement of both the hands and then do like whatever things that they require to do with the hands, right. So ये मतलब एक प्रोसेस बाय प्रोसेस कुछ चीज़ों को आगे लेके चलता है. पहले उसने हैंड मूवमेंट सीखा, फिर हैंड मूवमेंट को उसने अकम्पनी किया विद द
movement of like both the hands, and then along with the movement of both the hands and fingers the child is grasping something, so that you call as the principle of integration. Then the principle of lack of uniformity in the development rate. So that is very obvious कि आप देखेंगे कि हो सकता है that somebody is growing at a faster pace, उसकी height आपको बहुत अच्छी दिख जाएगी और वेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो इमोशनल या जो आपके मेंटल या सोशल डेवलपमेंट है वो उतना फास्ट नहीं होता है, बिकॉज अगेन देयर आर वेरियस थिंग्स दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो हम जो फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। एंड फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम स्टेजेस के बाद कवर करेंगे, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द क्रोनोलॉजी दैट इज मेंशन इन योर सिलेबस ओनली। देन योर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस आपने भी देखा होगा कि वी ऑल डोंट ग्रो इन द सेम वे, ऑल्दो जो हमने शुरुआत में ही ग्रोथ कर्व में देखा था कि इट फॉलो सर्टन पैटर्न, बट अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इटसेल्फ, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हमने पहला वाला जो सिलेबस का पार्ट है वो कवर कर लिया है, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ ग्रोथ स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस होते हैं फ्रॉम प्री नेटल टू दी सेनेसेंस, हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सी दे कैन बी लाइक वेरियस जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेजेस पर डेवलपमेंट होती है, राइट। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट देयर इज़ नो सच फिक्स्ड क्लासिफिकेशन that is mentioned out here, कि even though there is no consensus on the classification of various stages of development, but generally most of the time you will see there will be 8 development stages. ये कौन कौन से हैं आपके? First is your prenatal, then your stage of infancy and toddlerhood, then your early childhood, middle childhood, period of adolescence, then young adulthood, middle adulthood, and your late adulthood. तो ये अलग अलग 8 stages हैं. So what we will do is we will study all these stages along with certain characteristics, right? कि physical changes क्या क्या आते हैं, कौन like what is the time period, like what are the psychosocial developments, तो ये सारी चीज़ें हम इनके अंदर देखेंगे. एंड ऑल्सो देयर वॉज अ स्टेजेस ऑफ psychosocial development given by एरिक एरिक्सन. ऑल्दो ये psychosocial developments जो हैं हमें जानने की ज़रूरत नहीं है from our anthropology perspective, because mostly they are for the psychology students, but even though अगर आप देखेंगे तो you will find kind of an overlapping between the stages of development and these these are basically the complexity in terms of the emotion and the situations, right? यहाँ पे trust mistrust, autonomy versus shame, then the initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generosity versus stagnation, and integrity versus despair. तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलेंगी. एंड वाई दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इफ़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट मतलब वर्थ टू नो, बिकॉज आप इन चीज़ों को एथिक्स में भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो अपनी आँख कान सब कुछ खुली रखें एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो सबसे पहले अगर आप प्री नेटल पीरियड की बात करें, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ, यानी कि जब से फोटस डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, आप उस टाइम से जो बर्थ तक का पीरियड है, दैट यू अकाउंट एज द प्री नेटल पीरियड, राइट. सो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, और साइकोसोशल डेवलपमेंट क्या होती है, वो हम देख लेते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक एंडोमेंट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द बेसिक body structure and the organ forms. Brain growth spurt begins, and the physical growth is the most rapid in the lifespan. Vulnerability to the environmental influences is great in this particular period. आप देखेंगे कि certain like nutritional deficiencies की वजह से या कोई और reason की वजह से, like ये भी बोला जाता है the pregnant women should not take much stress, she should stay happy and so and so. तो वो सब इसीलिए because ये सारी चीज़ें like they forms a very important role in the development of the fetus so that a healthy child can develop. ठीक है. कॉग्निटिव में आप देख सकते हैं ability to learn and remember and to respond to the sensory stimuli are developing. ठीक है. वहीं साइकोसोशल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि जब फीटस समटाइम्स रिस्पॉन्ड टू द मदर वॉइस, और ये सारी चीज़ें होती हैं लाइक अल्ट्रासाउंड में, और आपने मूवीज़ में भी अक्सर देखा होगा.
So such a things happens during the prenatal period. And then when you talk about the infancy and the toddlerhood, that starts from the birth till the age of 3. इसमें कौन कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं? सो ऑल द सेंसेस ऑफ द बॉडी सिस्टम ऑपरेट एट बर्थ to the varying degree, and the brain grows in complexity. Then the physical growth and the development of the motor skills are rapid. यानी कि अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं. फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके चीज़ों को पहचानना, जानना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और बच्चा बोलना भी इसी स्टेज में शुरू करता है. अगर आप साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पेरेंट्स अटैचमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू दी ऑटोनॉमी, कुछ ऐसे अलग अलग ट्रेट्स हैं. सो आई सजेस्ट कि ये जितने भी हम यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस और ट्वाइस. तो एग्जामिनेशन में जब भी आपको लिखना होगा तो आप यहाँ से चीज़ों को ईजिली याद करके लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक वेरी टफ दैट यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड आउट ऑफ इट. और यहीं अगर आप इन्फेंसी और टोडलरहुड के ये साइको सोशल डेवलपमेंट को अगर आप समझना चाहते हैं, देन यू कैन सी कि यहाँ पे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का एक कन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, सो दैट द बेबी इज़ नॉट रियली श्योर कि वो कुछ भी चीज़ें उसको दी जा रही है तो उसके कैसे रिएक्ट करना चाहिए. सो वो धीरे धीरे ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती जाती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द इन्फेंसी इन द साइकोसोशल डेवलपमेंट. देन अर्ली चाइल्डहुड की अगर आप बात करें तो वो 3 to 6 ईयर में होता है. ग्रोथ यहाँ पे स्टीडी हो जाती है, अपीयरेंस बिकम मोर स्लेंडर इन प्रोपोर्शंस, मोर अडल्ट लाइक होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे. एपेटाइट डिमिनिशेस एंड द स्लीप प्रॉब्लम्स आर कॉमन. हैंडेडनेस अपीयर, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स. कॉग्निटिव की अगर बात करें तो थिंकिंग इज समवॉट ईगोसेंट्रिक बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव ग्रो. आप अक्सर देखते होंगे इस टाइम पे बच्चे शेयरिंग और ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, मतलब जैसे पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, अदरवाइज दे आर काइंड ऑफ एन वेरी स्टबर्न ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और प्री स्कूल अटेनमेंट इसी टाइम पे शुरू होता है, बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं लाइक वंस दे बिकम्स 3 years. और कॉग्निटिव इमेच्योरिटी लीड टू सम इलॉजिकल आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड. आप अगर सोचने बैठेंगे कि हाउ यू माइट हैव बीन परसीविंग द वर्ल्ड व्हेन यू वर अ किड, तो यू माइट फील वेरी वियर, राइट. कि हम सभी बचपन में कुछ चीज़ों को लेके अलग अलग तरीके की धारणा रखते हैं कि ये कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा. सभी बच्चों के अपने ख्याली ब्लॉक होते हैं. एनीवेज, सो साइको सोशल डेवलपमेंट इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस ग्रोज. देन जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है. प्ले बिकम्स मोर इमेजिनेटिव, मोर elaborate. Altruism, aggression, fearlessness are common. Family is still the focus of the social life, but other children becomes very मतलब much more important also, because इस टाइम पे बच्चे लोगों के साथ बाहर खेलना भी बहुत पसंद करते हैं. तो ये सारी चीज़ें लाइक मतलब these are not very exhaustive list in a way, बट हाँ ये चीज़ें तो होती है दैट यू कैन मेंशन. और अगर आपको लगता है इसके अंदर और भी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए तो यू आर लाइक डेफिनेटली फ्री टू डू दैट एज वेल. देन योर मिडिल चाइल्डहुड की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है. स्ट्रेंथ एंड एथलीट स्किल्स इम्प्रूव. आपको याद होगा स्कूल्स के टाइम में आप खुद को इमेजिन कर सकते हो, यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड. रेस्पिरेटरी इलनेसेस आर कॉमन बट हेल्थ इज जनरल बेटर देन एनी अदर टाइम इन द लाइफ. एंड ईगोसेंट्रिक डिमिनिशेस. Children begin to think logically but concentrately, and memory and language skill increase होती है. Some children show special educational needs and strength. Then psychosocial development में self concept become more complex, affecting self esteem, co-regulation. मतलब इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं ये मिडिल चाइल्डहुड वाले, आप इनको देखेंगे अगर इनको कोई डांट भी देता है तो बड़े दिल पे इनके लग जाती है. ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है. ऑल्दो दे बिकम मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स, कॉग्निटिवली वो काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको हैंडल कर पाना अब से टिल दी एडोलेसेंस काफ़ी मुश्किल होता जाता है. और वहीं आप ये देख सकते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन दी स्कूल एज क्या हो सकता है कि उसे आप कभी कभार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और लोगों के बीच में कैसे बोलनी चाहिए, कैसी बातचीत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ख्यालात उसके दिमाग में चलते रहते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक कॉम्पिटेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्किल्स ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल्दो कॉम्पिटेंस अलग अलग टाइप के हुए तो आपके थ्रू आउट द लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. देन एडोलेसेंस की अगर आप बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम द 11 to the 20 ईयर. फिजिकल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड द अदर चेंजेस आर रैपिड एंड प्रोफाउंड. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अकर्स बिकॉज एडोलेसेंस के एज में आप अचानक से आप देखेंगे लड़कों की हाइट बिल्कुल खिंच जाती है, लड़कियों के भी बॉडी में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस ओनली.
and the ability to think abstractly and scientific reasoning develops. Immature thinking persists in some and attitude behavior. Education focuses on the preparation for the college and vocations. Psychosocial development may search for identity, including the sexual identity. Relationship with parents are generally good. Peer group help develop and test concepts, but also may exert an antisocial influences. सो यंग एडल्टहुड में अगर आप बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट एज सच आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए आई हैव केप्ट इट ब्लैंक. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है. अब मोरालिटी और इथिक्स पे भी आप बात करने लगते हो और आप ज़्यादा इस टाइम पे फोकस्ड होते हो towards your career, towards your family, all those things. So like we all are in this age only, right? जो young adulthood आप उसको बोल सकते हो. Psychosocial development में personality traits and styles become relatively stable, but changes in personality may be influenced by the life stages and events. Decisions are made about intimate relationship and personal lifestyle. Most people marry and most people become parent in this stage only. So that's like quite relatable, right? एंड मिडिल एडल्टहुड की अगर आप बात करें तो ये 40+ से 65 तक जाता है मोस्टली. सो इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, तो फिजिकल कंडीशन पीक्स देन स्लाइटली डिक्लाइंस. लाइफ स्टाइल चॉइसेस इन्फ्लुएंस दी हेल्थ. इसी टाइम पे आपको मोस्टली वैसे तो जो भी आपके लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं इनके लिए कोई एक सर्टन फिक्स्ड एज पैरामीटर नहीं होता. इट कैन हैपन लाइक एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट मोस्टली आपको इस टाइप के जो भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज है, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है. हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स एंड ऑल्सो एंड सो. और वुमेन में मेनोपॉज भी आपको इसी मिडिल अडल्टहुड में देखने को मिलेगा. कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मोस्ट बेसिक मेंटल एबिलिटी पीक्स. एक्सपर्टीज एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर हाई. दैट टू बिकॉज कि बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं. दे बिकम मोर वाइज, उनका विजडम काफ़ी ब्रॉडन हो जाता है. सो दैट इज़ इट. एंड फॉर सम करियर सक्सेस एंड अर्निंग पावर पीक्स. फॉर अदर्स बर्न आउट और करियर चेंज मे अकर्स. तो ये सारी कंडीशंस आपको मिडिल अडल्टहुड में देखने को मिल सकते हैं. सो बी रेडी विद दैट. साइकोसोशल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी कंटिन्यू टू डेवलप. स्ट्रेसफुल मिडफुल ट्रैक्शन में अगर, और मिड लाइफ क्राइसिस आपने सुना होगा तो वो आपको इस टाइम में हो सकती है. और यहाँ पे जो एक मैरिज लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है. देन लेट अडल्टहुड की बात करें तो लेट अडल्टहुड इज़ योर लाइक अब बूढ़े हो गए नाउ, लाइक यू नीड टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स. अब काम वाम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस टाइम पे जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मोस्ट पीपल आर हेल्दी एंड एक्टिव, although health and physical abilities decline somewhat, and slowing of reaction time affects some aspect of functioning. आपने ये भी देखा होगा कि sometimes some people are like kind of an very healthy and active throughout their life, ठीक है, but एक certain age आते जाता है 85 90, आप देखेंगे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है that they started their health started declining. एंड वेन यू विल सी आपको कोई ऐसा सर्टन एलिमेंट नहीं दिखेगा कि अच्छा उनको हार्ट प्रॉब्लम है, अच्छा डायबिटीज़ है या कोई अदर टाइप की उनको डिजीज़ है. बट इवन दो दे स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स ऑफ डिक्लाइन, दैट्स बिकॉज दैट यू कॉल लाइक एजिंग बेसिकली. और वो आपको फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, आपके बॉडी पार्ट्स है, वो कहीं ना कहीं डिजेनरेट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर लोग आपको मेंटली अलर्ट दिखेंगे, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे आपको मेमोरी लॉसेस, या इफ़ नॉट लॉसेस इज़ नॉट अ राइट वर्ड टू यूज़, मेमोरी डिटोरिएट करने शुरू हो जाती है, ठीक है. आप ये अगर आपकी दादी नानी हो, नाना नानी, आप उनके साथ ये चीज़ें देख सकते हैं. यू विल बी एबल टू रिलेट बेसिकली. साइकोसोशल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, साइकोसोशल डेवलपमेंट से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की हो सकती है. सम पीपल माइट एन्जॉय देयर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, सम माइट नॉट. उस अकॉर्डिंग इनके जो रिएक्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है. और ये मिडिल एडल्टहुड वाला जो है, व्हेन यू बिकम पेरेंट एंड व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, तो मिड लाइफ क्राइसिस जो मैंने आपको बताया, और चीज़ों को बैलेंस आउट करना, ये सारे साइकोसोशल डेवलपमेंट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं. एंड माइंड इज कि ये कुछ एग्जॉस्टिव नहीं है कि इसी टाइप के साइकोसोशल डेवलपमेंट होंगे इन सर्टन स्टेजेस. आई जस्ट इंक्लूडेड दिस एज एन एग्जाम्पल सो दैट कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था, आप एथिक्स पेपर में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आप ये वाला अगर पोर्शन स्किप भी कर देते हैं, नो. Now in this part we'll do some bit of detailed understanding of the prenatal and the other stages. So for those of you just wanted to have like a brief overview, you can utilize that table in different forms. But अगर आपको डिटेल में जानना है चीज़ें, then this is the part, right? And I suggest कि आप specially प्री नेटल वाला जो स्टेज है, इनमें और कौन कौन से अलग अलग सब स्टेजेस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. बिकॉज इट्स लाइक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्टेजेस इन द इंटायर ह्यूमन डेवलपमेंट.
ऑल्सो दिस कैन इट सेल्फ कम्स एज अ क्वेश्चन, मतलब ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है, ऑल्दो चांसेस लाइक इट्स अ ब्लीक बिकॉज ये मोस्टली आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया. Because I also being a non-biology student, I'll try and explain to you in a very simple word to my understanding, right? So अगर आप प्रीनेटल स्टेजेस की बात करें तो इनके अंदर आपको 3 सब स्टेजेस मिलेंगे. तो दिस यू कैन say 3 sub stages, right? So these are the germinal stage, embryonic stage and the fetal stage. And at least we all know that जो आपकी development है of a child inside the womb of the mother takes around 9 months, right? Or this 9 month accounts to 38 weeks you can say, ठीक है. So इन 38 वीक्स को अलग अलग स्टेजेस पे अगर आप डिवाइड करेंगे, अप टू 9 वीक का जो टाइम है वो आपके इन 3 स्टेजेस को कवर कर रहा है. दैट इज योर germinal stages, which is from 0 to 2 weeks, embryonic from 3 to 8 weeks, and fetal from 9 to birth. That means 9 to 38 weeks. ठीक है. तो हम अब एक एक करके इन तीनों सब स्टेजेस को भी डिटेल में देख लेते हैं कि जर्मिनल स्टेज पे क्या होता है, देन एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे क्या होता है, देन एट द एंड फीटल स्टेज पे क्या होता है, एंड दैट विल इंटायरली सम अप योर प्रीनेटल स्टेज. आई होप दैट्स क्लियर अप टिल नाउ, राइट? सो अगर हम जर्मिनल स्टेज की बात करें, सो वट एवर इज रिटन आउट हियर, सो लीव इट एज ऑफ नाउ. What I will do is I'll try and explain you along with some diagrams so that you can come back to this and see whether you have understood it or not. So if you have to see the overview of female reproductive system, so this is what we have all seen during our 8, 9 and 10 standard, जब कभी भी आपने female reproductive system पढ़ा हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं the things that we need to remember, like few organs that you need to remember in the reproductive system as of now is your fallopian tube or uterus. ठीक है, this like is known as the uterus, और यहाँ तक वाला पार्ट you can roughly refer to as the fallopian tube, और यहाँ पे आपको ovary मिलेगी, राइट? तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इनमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो देख लेते हैं. जर्मिनल स्टेज पे चीज़ें शुरू कैसे होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी एग की फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज योर जाइगोट. ठीक है, अभी के लिए आप इन पिक्चर्स पे भी ध्यान ना दें, जस्ट लाइक हैव अ लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सबसे पहले जो एग की फर्टिलाइजेशन होती है दैट हैपन्स इन द फेलोपियन ट्यूब, दैट इज हियर. ये वाला जो फेलोपियन ट्यूब है ये ओवरी है, हमने देखा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू हुई. Now, as we all know that we have grown from a single cell to the multiple cell organism, मतलब आज के डेट में what we are today, we are a multicellular organism, right? But हमारी शुरुआत तो हुई थी सिंगल सेल से, लेकिन ये सिंगल सेल मल्टीसेल्यूलर कैसे बन गया? So it all happens in various stages. अब ये कौन कौन से स्टेजेस है? सी, सबसे पहले तो आपका जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, डिवाइड होके वो 2 सेल स्टेजेस में जाएगा, then it will go on to the 4 cell stages, then 8 cell stages, और इसी तरह से ये डिवाइड होता चला जाएगा, राइट? एज यू कैन सी ये अलग अलग जो स्टेजेस है आपके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस तरीके से सेल्स डिवाइड करेंगे. और जब ये आपके सेल्स डिवाइड होके 16 सेल्स बन जाते हैं, इनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज द मोरोला. ठीक है, बट नो नॉट टू वरी, आपको ये नाम और ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है. व्हाट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लिया आपने कि 4 स्टेजेस तक आ गए. देन ये 4 स्टेजेस तक जो आपके है, उसके बाद जो 8 स्टेजेस तक हुआ, इट इज़ हैपनिंग इन दी फेलोपियन ट्यूब. उसके बाद से यहाँ से आपका यूट्रस शुरू हो जा रहा है, राइट? दैट इज़ वाई यू कैन रेफर इन दिस पिक्चर कि 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल डिविजन ये कहाँ हुआ है आपके? अकर इन दी यूट्राइन ट्यूब, दैट इज़ द फेलोपियन ट्यूब. और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज़ योर 16 सेल, और बाकी के आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपके यूट्रस में हो रहा है. दैट इज़ क्लियर एज ऑफ नाउ. तो अब जब आपके यूट्रस में ये सारी चीज़ें आई, नाउ वी नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब हम बात करते हैं कि हम सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर बने हैं, साथ ही साथ वी हैव ग्रोन टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, राइट? वी आर जस्ट नॉट दी सेम टाइप ऑफ सेल्स एवरीवेयर. आपके लंग्स अलग है, आपकी हार्ट है, आपका ब्रेन है. सो ऑल दीज नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स फॉर द डेवलपमेंट. ये सेम टाइप के तो नहीं है, दैट मीन्स देयर सम काइंड ऑफ एन डिफरेंशिएशन दैट इज हैपनिंग, राइट? सो दैट डिफरेंशिएशन यू कॉल एज द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट का आपका जो आप कह सकते हो जूम वर्जन है,
और ये ब्लास्टोसिस्ट आपका कहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये ब्लास्टोसिस्ट आपके यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला जो स्टेज है ना, ये धीरे धीरे अब ब्लास्टोसिस्ट होना शुरू हो गया। ब्लास्टोसिस्ट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन, यानी कि ये अलग अलग टाइप के आप देख रहे हैं, ये सेल्स का जब एक गुच्छा सा बन गया, ये एक आपको बॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें अलग अलग सेल्स है, और ये अलग अलग सेल्स भी फिर डिफरेंशिएट होने शुरू हो गए, राइट। यानी कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग फंक्शंस के या अलग अलग तरीके के सेल्स बनने शुरू हो गए, दैट इज सिंपली कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट हुआ, ये फर्दर ब्लास्टोसिस्ट अब और ज़्यादा डिवाइड कर रहा है। नाउ देयर विल कम अ स्टेज, देन वी मूव ऑन टू द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो यानी कि यहाँ तक तो आपकी चीज़ें हो गई है, ब्लास्टोसिस्ट तक हो गया, अब ये यहाँ तक पहुँच गया है। अब आगे क्या होगा वो हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में देखेंगे। नाउ इफ़ यू गो बैक टू दिस जर्मिनल स्टेज जो हमने अभी तक यहाँ पर देखा, that happens in and around the few weeks, that is your fertilization से 2 वीक के अंदर, मतलब लगभग 14 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं, यू कैन पॉज द लेक्चर एंड रीड इट आउट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ, आई होप। नाउ जब एम्ब्रॉयनिक पीरियड आता है और जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है, दैट इज़ फ्रॉम 2 वीक्स टू 8 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन, ठीक है। तो अब ये 2 वीक्स से 8 वीक्स जो आफ्टर कंसेप्शन है, इसके अंदर आपका एम्ब्रॉयनिक पीरियड फॉर्म होगा। अब इस एम्ब्रॉयनिक पीरियड में क्या होता है, जो आपका वापस से अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो ये वाला जो आपका ब्लास्टोसिस्ट हुआ था, दैट यू कैन सी ये कहीं ना कहीं अब यूट्रस के वॉल से अटैच होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये यूट्रस के वॉल से अटैच क्यों होगा, देयर आर वेरियस रीजन। अब ये जो एम्ब्रॉय है, ये जब डेवलप होगा तो डेवलप होने के लिए इट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, इट नीड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इट नीड टू थ्रू आउट द वेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए इसे कुछ ना कुछ एजेंट की ज़रूरत होगी, एंड दैट एजेंट और द मीडियम कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द यूट्रस वॉल, जो कि ये है, ये यूट्रस वॉल ही है ना, क्योंकि हमने देखा दिस इज द यूट्रस, तो अब ये यूट्रस वॉल पे आके अटैच हो गया, दिस इज समथिंग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और ये यूट्रस वॉल से आपका बाहर की तरफ अटैच कैसे होता है, थ्रू द प्लासेंटा। सो नाउ ये जब यूट्रस वॉल पे अटैच होगा, दैट इज इन योर एम्ब्रॉयनिक स्टेज, तो इस की मदद से इट विल ट्राई एक्सचेंज द various gases, take nutrition and all other things that we talked about. अब इस ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर और भी सेल डिवाइड्स होंगे, तो वो स्पेसिफिक सेल्स होंगे जो कि आपके मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सारे होते हैं, दैट यू कैन सी कि एक्टोडर्म के क्या होते हैं फंक्शन, मेसोडर्म के क्या होते हैं फंक्शन, एंड इंडोडर्म के क्या होते हैं फंक्शन। तो ये जो बेसिकली हमने बात की थी वो जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो अलग अलग डिफरेंशिएशंस हो रही थी, उस डिफरेंशिएशंस में जो जो अलग अलग डिफरेंट आपके सेल्स निकल के आए थे, उनका क्या क्या फंक्शन है वो ये बता रहा है। एंड ये वाला आप थोड़ा और क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे यूट्रस की वॉल में डाइजेस्ट होता जा रहा है। और डाइजेस्ट का मतलब बस यही है, लाइक कि ये आपके यूट्रस के वॉल से अटैच हो रहा है, दैट यू कैन सी ये फुली अटैच हो गया है यहाँ पे। एंड नाउ हियर द डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द यूट्रस इटसेल्फ, और यहीं पे ये चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द जर्मिनल एंड द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या काम होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, दैट यू कैन सी। और इफ़ यू वांट टू लुक इनटू डीपर कि अलग अलग और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, दैट इज़ रिटन आउट हियर कि आपके 4 वीक्स से 8 वीक्स तक क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। क्योंकि हमने देखा कि आप तो वो यूट्रस वॉल पे भी अटैच हो गया है, न्यूट्रिशन भी मिलना शुरू हो गया है, गैसेस एक्सचेंज भी शुरू हो गया है, देन आगे क्या होगा। तो दिस इज अबाउट द डिटेल, आई एम नॉट गोइंग इनटू लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट बिकॉज दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेल रिटन। तो आप चाहे तो एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप स्पेसिफिक वीक्स पे भी क्या डेवलपमेंट होंगे आप थोड़ी बहुत वो बता सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक लाइक इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इवन दो, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, बिकॉज हमने ये देख लिया कि जर्मिनल स्टेज पे क्या होगा, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे क्या होगा, एंड फीटल स्टेज पे क्या होगा, अब वो देख लेते हैं। सो इन द फीटल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2 months आफ्टर कंसेप्शन अंटिल द बर्थ, दैट इज ओवरऑल 7 मंथ का आपका फीटल पीरियड होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा होता है। ऑल्दो प्री नाटल स्टेज में जो जर्मिनल स्टेज होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और ओवरऑल प्री नाटल आपके पूरे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और फीटल स्टेज जो है आपके प्री नाटल में, ये सबसे
लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, यानी कि 7 मंथ का होता है। तो इसके अंदर कुछ खास वैसा टेक्निकली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इसमें आपको इतना पता होना ज़रूरी है कि फीटस कितना से कितना बड़ा होता है, मतलब उसकी साइज़ ग्रो होती है बेसिकली, और अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और इन ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, कि 9 to 15 वीक्स में क्या हो सकता है, देन 16 to 26 वीक में क्या होता है, देन 27 to 38 वीक्स में क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, राइट। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 9 to 15 वीक्स में ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बच्चे के हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, टूथ बर्ड्स अबियर हो जाते हैं, आईलीड्स फॉर्म होती है, फीटस काफ़ी एक्टिव हो जाता है, एंड दैट इज़ वेयर यू से दैट इट स्टार्टेड फीलिंग द मदर्स अफेक्शन। और फिर आपकी 16 to 26 वीक में ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, लंग्स में एल्वियोल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, एंड देन इंटरनल पार्ट ऑफ द आई एंड ईयर फॉर्म्स, आईब्रो, आई लैशेज और नेल्स अपीयर करने शुरू हो जाते हैं, मसल की भी डेवलपमेंट हो जाती है अप टू लाइक 26 वीक्स, देन 27 टू जो 38 है। और ये आपने अक्सर सुना होगा कि लाइक दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन दी प्रेगनेंसीज, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि वाइटल बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, राइट। और 27 to 38 वीक में आपके बॉडी फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे को आप आसानी से अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं। देन बोन कंप्लीट द डेवलपमेंट, head hair get coarser and thicker, and the brain is continuously active at this point of time, ठीक है। तो this is all about the 3 stages of the prenatal। इसके बाद आ जाते हैं आपके पोस्ट नाटल ग्रोथ। सो सी दिस पोस्ट नाटल ग्रोथ, ये आपके इन्फेंसी से लेके मेचोरिटी तक, मतलब पूरे आपके जो सेनेसेंस है ये सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मेचोरिटी एंड सेनेसेंस, ये सारे आपके पोस्ट नाटल ग्रोथ के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप इन्फेंसी की बात करें तो सी अगेन इसके अंदर कुछ वैसा बहुत आपको समझाने के लिए नहीं है, तो आई विल नॉट वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम इनटू इट, अदरवाइज लेक्चर वैसे ही बड़े हो जाते हैं, खिंच जाएंगे, ठीक है। तो इन्फेंसी में आप देख लीजिए क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और हमने वहाँ पे देखा, वहाँ से भी आप उठा के कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, बट दिस वन इज़ लाइक मोर इलेबोरेट, ठीक है। देन फिर चाइल्डहुड में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके, मिल्क टीथ और किस तरीके के ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती है वो आप लिख सकते हैं। देन एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके, प्यूबर्टी से लेके सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट एंड वॉइस चेंज, ये सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड अदर ग्रोथ्स, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। तो आई एम जस्ट नॉट पुटिंग अप मच टाइम आउट हियर बिकॉज आई एज्यूम ये चीज़ें उतनी डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन जस्ट हैव इट। आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड और रिक्वायर फॉर द नोट मेकिंग पर्पज, ठीक है। देन सेनेसेंस जो है ये आपका लास्ट स्टेज है, और वैसे भी हम एजिंग एंड सेनेसेंस डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ द पोस्ट नैटल वन। और एक कैचअप ग्रोथ, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट आई हैव इंक्लूडेड इट हियर, कि मतलब एक वर्ड है जिसका आपको पता होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा दैट वेन एवर यू गो सिक, और उसके बाद योर फैमिली फ्रेंड्स माइट स्टार्टेड टेलिंग यू कि अच्छा बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, या मतलब आपका मुंह छोटा हो गया एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो उसके बाद जो आपकी इलनेस के बाद या किसी ऐसी कंडीशन के बाद, स्टार्वेशन, इलनेस जो भी आप मान लें, सिकनेस, इसके बाद जो ग्रोथ होती है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ संकिन हो जाती है, एटलीस्ट दिखती है, लगती है, और होती भी है कहीं ना कहीं, तो उसके बाद जो वापस से ग्रोथ होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड द कैचअप ग्रोथ, ठीक है। तो ये जस्ट एक वर्ड है, वो आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इश्यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। इश्यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मतलब कि सर्टन थ्योरीज प्रिवेलिंग अराउंड इट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐसे होता है या डेवलपमेंट वैसे होता है। तो व्हेन यू विल सी यू विल अंडरस्टैंड कैसे होता है। सो इसके मेजरली आप 3 पैरामीटर्स पे हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ योर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि वही नेचर वर्सेस नर्चर वाला जो डिबेट है। देन योर एक्टिव और द पैसिव कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट, और एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन पर देखेंगे। तो अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें तो अगेन दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल कंसेप्ट, कि नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नर्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक लाइक व्हाट आर द theories or the understanding given by various philosophers and other social scientists. So John Locke, he basically said that कि जो हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे का दिमाग इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, आप जैसे चाहो उसको उस तरीके से शेप कर सकते हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आप उस पर लिखना चाहते हो उस तरीके से आप उसको मोल्ड कर सकते हो, राइट। जॉन वॉटसन जो कि एक बिहेवियर साइंटिस्ट थे, इनका ये मानना था कि ये बच्चे को चाहे जैसा वैसा बना सकते हैं, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, यू मे शेप लाइक विच एवर वे यू वांट।
वहीं जे रोसेसियर और गिजेल का मानना था कि जो हेरिडिटी है इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। यहाँ पे ये नेचर की बात कर रहे थे कि जिस तरीके का उनको इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे उस तरीके से डेवलप होंगे। यहाँ पे माना ये जा रहा है कि बच्चे कच्चे घड़ी की तरह है, दे कैन बी शेप्ड लाइक इन एनी वे। वहीं इनका मानना ये था कि आपकी हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। सो अगेन ये एक मतलब आप कह नहीं सकते कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इट्स काइंड ऑफ एन मिक्स ऑफ इट, राइट। सो इट इज़ रिवील्ड फ्रॉम द रिसर्च स्टडीज दैट बोथ हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। हमने ट्विन स्टडीज़ और बहुत सारी स्टडीज़ पहले पढ़ी हुई हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं। एंड इन इंडियन सेटिंग इट मे बी ऑब्जर्व दैट द चाइल्ड हु आर रियर्ड अप इन एन enriched environment behave differently than those to the peer group who are raised up in an impoverished environment, and it's just not true for the India context. आप हर जगह देखेंगे कि बच्चे अपने हिसाब से बिहेव करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं those who become very mature in the early stages of life itself because of the harsh realities that they face, और कभी कभार आप ऐसे देखेंगे जो बच्चे मतलब 30 साल के भी वो बच्चे ही रहते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट। सो एक्टिव एंड पैसिव कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट। अब एक्टिव एंड पैसिव कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट कहने का ये मतलब है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से आपकी डेवलपमेंट पर असर डालते हैं, दैट इज टू बी सीन, राइट। सम थ्योरिस्ट बिलीव दैट द ह्यूमन बीइंग ऑलवेज ट्राई टू डिस्कवर एंड शेप देयर ओन एनवायरनमेंट फॉर देयर डेवलपमेंट. For example, childs are curious creatures and they actively construct their environment during their role-playing games. Some other psychologists emphasize that the development of the human being are controlled by the outside environment. And जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर कोई शैतानी करता है या वो किसी भी तरीके से बिहेव करता है तो अल्टीमेटली आप उसकी अपब्रिंगिंग को देखते हो और ये देखते हो लाइक हाउ द टीचर इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, राइट। कि टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, या घर में बच्चे को कैसे रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ इज़ द डेवलपमेंट और व्हाट इज़ द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो ये एक्टिव और पैसिव कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। देन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हम कहते हैं कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको बचपन में होते हैं उसकी छाप ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, राइट। बट अगेन इसके पीछे भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ का ये मानना है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उनको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे जाके करेक्ट कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बार उसने जो भी एक्सपीरियंस कर लिया लाइफ लॉन्ग वो बच्चा, मतलब आप मान लीजिए कि सम चाइल्ड हैव फेस्ड काइंड ऑफ एन वायलेंस इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है। तो दैट चाइल्ड माइट बिकम वेरी फियरफुल और उसका जो ओवरऑल नेचर है वो भी उसी तरह से डेवलप होगा। इट नीड नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज। लाइक आई सेड कि कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया है कि इस टाइप की जो नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिकॉज ऑफ द लाइक चाइल्डहुड experiences, it can be rectified at the later stages as well. So again ये भी अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ है, आई डोंट नो लाइक आपको शायद एग्जाम में काम आ सकती है। दैट इज़ वाई आई हैव एडेड इट एज एन वैल्यू एडिशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली विल डिवाइड अपॉन टू थिंग्स। वन इज़ योर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेसिकली लाइक द इंटरनल थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्सट्रिंसिक जो बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी टू गो टॉपिक। सो इंट्रिंसिक के अंदर तो आपका ऑफकोर्स हेरिडिटरी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हेरिडिटरी से बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू गेन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड इट डिफाइंस लाइक हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। सो हेरिडिटरी और जेनेटिक ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन इट। देन हार्मोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इंटायर डेवलपमेंट, बिकॉज हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं दे डिफाइन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दैट यू आर गोइंग टू हैव। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आपको ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट देखने को नहीं मिलेगा। अगेन आपकी जो प्यूबर्टी होती है दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सिक्रीशंस ओनली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक एट व्हाट स्टेजेस ऑफ टाइम और एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम and like to what extent you are going to behave or like acquire certain characteristics in which manner is mostly controlled by your hormones, and again that is like the intrinsic one, right। तभी हम इनको एक important factor मानते हैं in the growth and development। सो एक्सट्रिंसिक के अंदर आपकी इन्वायरमेंट आ जाएगी कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। लाइक अ चाइल्ड हु इज़ बीइंग रियर्ड अप इन वेरी लाइक लविंग फैमिली और अ गुड इन्वायरमेंट, तो उसका जो बचपन है वो बहुत अच्छा रहेगा एंड ही विल बी काइंड ऑफ एन जेंटलमैन इन द लेटर स्टेजेस एज वेल। और अगर
it's like simply you can take the example of many of the Bollywood movies itself. They are very good for you to understand. जुड़वा मूवी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो दो बच्चे थे, they were like reared at two different circumstances and how they have developed. तो उनका जो environment था, जो external factor था, it played a very important role in their growth and development, right? जो like एक बहुत loving family में था, he was like very gentleman guy who was not able to fight for his rights, और उतना उनके बॉडी शॉडी भी नहीं थे. वहीं जो दूसरा वाला साइड था, who was reared in a very harsh condition and harsh environment, तो he was like ready to fight for his own rights, और उसके काफ़ी muscle building और ये सारी चीज़ें थी. तो that is like how you can understand and remember, ठीक है. So that is about the environment. Then nutrition की अगर बात करें तो nutrition तो of course it plays a very important role in the overall development. So बच्चे कैसे खाते हैं, उनके development एक certain growth stages पे कैसा हो रहा है. आप अगेन वही बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, इन सारा एग्जाम्पल को लेके इजीली समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. ओवरऑल वैसे भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. और familial influence, families have a most profound impact on the nurturing of a child and determining the way in which they develop psychologically and socially, and whether they are raised by their parents, grandparent or foster care, they need basic love and care, courtesy to develop as a healthy functional individual. So again family influence भी आपके external के अंदर ही आएगा, right? So these are the thing. अभी एक हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग है, इट्स लाइक वन पिकुलियर वर्ड दैट आई फाउंड, तो इसको आप याद रखिएगा. तो हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग बेसिकली वो होती है जहाँ पे आप बच्चे पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है. द काइंड ऑफ एन अटेंशन दैट अ चाइल्ड रिक्वायर, द चाइल्ड डोंट केयर लाइक वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और हाउ मच बिजी यू आर. द चाइल्ड रिक्वायर्स इज लाइक योर अफेक्शन, योर लव, योर टाइम, राइट. और जब उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, दे फील नेग्लेक्टेड, and at that point of time and that kind of a parenting that you can say helicopter parenting. And I'm not saying that every parent who send their child to the care homes or somewhere when they are like out for the office and so they are the helicopter parenting, but हाँ कई cases में आपको helicopter parenting type की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है. जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज यू नो कि बच्चे जिस जगह पे रहते हैं और वहाँ पे उनको कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है या कैसा माहौल है, लाइक वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो बच्चा किस तरह से अडेप्ट होगा. बिकॉज अगर मान लीजिए कोई हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं तो द चाइल्ड विल बी ग्रो एंड डेवलप इन अ मैनर व्हेन ही इज़ लाइक एबल टू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. उसके लिए हाइकिंग और ट्रैकिंग ये सारी बहुत आम बात होगी, राइट. तो he'll be able to survive better in that particular kind of an environment. वहीं अगर आप एस्किमोस की बात करें जो उनके बच्चे हैं, they are like reared up in that kind of an harsh conditions, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे और उसी तरह से एक्ट करेंगे, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग होंगी, राइट. तो दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट द जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस. अब आप बात करें लाइक सेंटिनलीज की बात कर ले. सेंटिनलीज का किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनके जो बच्चे होंगे, वट लाइक द अजम्पशन कैन वी हैव कि उनके बच्चे जो होंगे दे हैव देयर ओन स्मॉल वर्ल्ड इन एंड अराउंड देयर पेरेंट्स ओनली, राइट. वो जैसा उनको बताएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो उसी टाइप का करेंगे. कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो यानी कि उसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है वही बहुत छोटा है, तो इसीलिए उनकी जो डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड नहीं जाएगी. इट विल बी मोर लाइक फ्लैट वन, राइट, कि इस तरह से ना होते हुए इट विल बी मोर लाइक दिस. देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. अगेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो लाइक आपकी हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, इन सभी पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विल बी inferior to the one who's having like good socio-economic status, although it's not very relatable, but yeah it has a certain extent, because बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं who even have like from like poor socio-economic background, they do well, and some who are like from a better socio-economic status, they are not being able to do so, although बहुत ज़्यादा correlation नहीं है, but yeah to an extent it happens. Then learning and reinforcement. एक बच्चे की learning और reinforcement कैसे रही, again उसकी development उस according भी होगी, because if you might see कि some parents are very much into like the child should learn the guitar also, their child should play chess also, their child should play basketball also, and they do Vedic mathematics also, so they wanted the child to do each and everything, right. But for some people it might not be necessary for them to make the child do this, that and everything like that, ठीक है. तो अब किस तरीके की लर्निंग कर्व पेरेंट बच्चे को दे रहे हैं, द चाइल्ड विल डेवलप इन दैट वे ओनली. हो सकता है एक कोई बच्चा सभी चीज़ें कर ले बट किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे को किसी एक चीज़ में लगाया जाए एंड वो बच्चा उसी तरीके से मेंटली इंटेलेक्चुअली जिस भी तरह से उसको ग्रो करना है वो उस चीज़ में और ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाए. सो दिस इज़ लाइक अगेन वन ऑफ द सेम थिंग.
Then cultural behavior, it is an important factor which has effect on the growth, breastfeeding, care of the child, consumption of rice, meat, milk, fish, etc. In other words, food habits, cleanliness, sanitation, home environment, and are the part of the cultural behavior. Because हमने देखा था कि हाउ दी अफ्रीकन वुमेन हैज़ अ लॉट ऑफ फोकस अपॉन दी ब्रेस्ट फीडिंग. वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं ड्यू टू वेरियस अदर सर्कमस्टांसेस कम देखने को मिलेगा. एंड वी ऑल नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो ये एक सर्टन कल्चरल इम्पैक्ट भी है, बिकॉज हमने देखा अफ्रीकन कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वहीं दूसरे जगहों पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दे डोंट डू सो मच इनटू इट, और उसको वो बॉटल फीडिंग से भी रिप्लेस कर देते हैं. तो कल्चर का भी इम्पैक्ट होता है, आपके कल्चर में किस तरीके का खाना खाया जाता है. अगेन दैट इज़ ऑल्सो देयर. कई बार ये बोला जाता है द फूड दैट यू ईट इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. सो ऑफकोर्स एक चाइल्ड जिस तरीके का खाना खा रहा है वो उस तरीके की चीज़ों को, मतलब आई एम नॉट टेलिंग ये कितना ट्रू है, बट या टू एन एक्सटेंट आपका जो कल्चर है, आप जिस तरीके का फूड हैबिट है, आपके रहन सहन जिस तरीके का है, सो दैट विल अगेन हैव अ वेरी much impact on your day-to-day life. अब again Japanese culture में आप ले लें, Japanese culture में they have a habit of maintaining proper hygiene, then they have a habit of maintaining themselves. आप देखेंगे कि वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं अपने environment को भी लेके, अपने आसपास की चीज़ों को भी लेके, and they have a certain kind of sophistication also, and perfection तो होता ही होता है. तो ये सारी चीज़ें आपके कल्चर से इनकलकेट होती है आपके अंदर, एंड दैट अल्टीमेटली डिफाइंस द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, राइट. लेट्स मूव ऑन टू दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज योर एजिंग एंड सेनेसेंस. सी एजिंग एंड सेनेसेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज है इन इटसेल्फ, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि दोनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम यू एसोसिएट विद द ओल्ड एज, राइट. सो एजिंग की जब आप बात करते हो तो एजिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है मोस्टली, अगर आप बात करें तो. अब जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग आपके स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ देखे थे ना, तो ह्यूमन ग्रोथ में एक तो आपके जो इन्फेंसी का स्टेज, देन चाइल्डहुड का स्टेज आ गया, और वो जो सारे स्टेजेस है आप उसको स्टेज 1 मान लो. फिर स्टेज 2 हो गए जहाँ पे अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड की आप बात करते हो, तो वो आपके रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट के अंदर आ गए. फिर आफ्टर दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ये एंड वाला स्टेज है, सो इन दिस स्टेज यू कैन से द लाइक द प्रोसेस ऑफ एजिंग स्टार्ट्स, ठीक है. सो नॉट एग्जैक्टली कि जब आपका ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो रहा है, बट फ्रॉम समवेयर इन दैट पोर्शन ओनली. लेकिन जब आप सीनेसेंस की बात करते हो तो सीनेसेंस एग्जैक्टली जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव एज खत्म होता है वहीं से आपकी सीनेसेंस शुरू हो जाती है. सो आई होप लाइक आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू कि आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज है, आपकी एजिंग हो सकता है उसके ख़त्म होने से पहले भी शुरू हो जाए धीरे धीरे, बट द सीनेसेंस विल अल्टीमेटली स्टार्ट्स व्हेन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड्स, राइट. सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ कपल हु कंसीव देयर चाइल्ड एट एन वेरी ओल्डर एज. मुझे एग्जैक्टली एज याद नहीं है, बट सपोज लाइक 55 ईयर्स की अगर हम बात करें, एट द एज ऑफ 55 दे कंसीव देयर फर्स्ट चाइल्ड. सो दैट मीन्स द कपल वर लाइक एक्टिव in their reproductive system was like active at that point of time, तभी तो वो reproduce कर पाए, एक child को जन्म दे पाए, right. So आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे उनका एजिंग शुरू नहीं हुआ था, बिकॉज 55 इज़ एन एज जब आप बोलते हो कि आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हो, राइट. लेकिन सीनेसेंस शुरू नहीं हुआ होगा, बिकॉज सीनेसेंस शुरू हो जाता तो उनकी जो सेल डिविजन्स है और जो जितनी प्रोसेस आप कहते हो रिप्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें उनकी बॉडी कर नहीं पाती. सो आई होप ये एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the exact difference in between these two, right. So aging में क्या होता है एक्चुअली, आपकी जो vulnerability है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है. vulnerability in terms of disease, in terms of your skin damage और ये सारी चीज़ें, और वहीं आपकी viability जो है वो घटती जाती है. सीनेसेंस अगर एग्जैक्टली आप टर्म्स की बात करें तो सीनेसेंस को आप बायोलॉजिकल एजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ योर बायोलॉजिकल एजिंग की एक तो एजिंग है आपकी जो चल रही है जिसमें डिटोरिएशन हो रहा है, सेल्यूलर डैमेजेस और ये सारी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन सीनेसेंस के केस में क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है सेल डिवीजन करना वो बंद कर देगी एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू डेथ. तो अगर आप इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से देखना चाहते हो तो एजिंग और एजिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी ये सीनेसेंस आएगी, ठीक है. उसके बाद अल्टीमेटली डेथ आ जाएगा.
और अगर आप इनको अलग से ग्राफ में देखना चाहते हैं तो एजिंग तो चलिए यहाँ से शुरू हो गई, दिस इज़ योर एजिंग, देन कहीं ना कहीं इस स्टेज पे जाके हो सकता है सेनेसेंस शुरू हो, और फिर अल्टीमेटली ये जहाँ पे ख़त्म होंगे दोनों, ये आपका डेथ हो गया, ठीक है. सो दिस इज इट अबाउट द टर्मिनोलॉजीज. आई होप यू आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. So now when you need to write about the definitions, so if you just see कि aging is an deterioration over a period of time. So now when you have to define the aging, अब aging को आप कैसे define कर सकते हो? Like it is basically the deterioration over a period of time of an organism's physiological functions that are necessary for the survival. Why? Because you must have seen or observed in and around yourself, जो आपके आसपास aging people होंगे, उनकी जो metabolism होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे deteriorate होना शुरू हो जाता है. In fact, their like coping capacities with the cold environment and with like various other things जो आपके environmental stresses होते हैं, उनको भी cope up कर पाने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है. तो these are all like signs of aging, you can say, right? और उनकी mobility कम होने शुरू हो जाती है, आपको उनको घुटनों में दर्द like is more common in compared to the younger counterparts, right? तो ये सारी चीज़ें आपको aging से associated देखने को मिलेंगी, that you can say like is the traits or the characteristics of aging as well. So again, अगर आपको characteristics लिखना हो aging का तो आप क्या लिख सकते हैं कि changes associated with aging are deleterious. और aging जो है ultimately आपकी जो coping capacity है इसको decrease करती है, and also aging will ultimately leads to what? Death. जो हमने देखा था that this is aging, this is your senescence, and ultimately एंड कहाँ पे हो जाएगा? डेथ पे हो जाएगा. एंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विद एजिंग एंड सेनेसेंस आर इनस्केपेबल एंड दे आर फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ. और सिम्टम्स आपके ग्रे हेयर्स, स्किन नॉट स्मूथ, ये कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स है. इंटरनल सिम्टम्स भी बहुत सारे होते हैं, वो हम कॉजेज में आगे देख लेंगे. और एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका इन्वायरमेंट, आपकी लाइफ स्टाइल, ऑल दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्रोसेस ऑफ एजिंग. बिकॉज हमने ये देखा कि एजिंग शुरू हो जाती है, बट एग्जैक्ट यू कैन नॉट जस्ट से कि like at age of 45 the aging start, at the age of 50 the aging start. बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा कोई आप एज के टर्म्स में डिफाइन नहीं करते. इट माइट लाइक डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन, बट अल्टीमेटली दे विल एज, बट वो किस पॉइंट पे एज करना शुरू करते हैं दैट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? उसी तरह से सेनेसेंस भी कब होगा? जब रिप्रोडक्टिव एज खत्म होगी. तो वो तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, तो दैट इज बेटर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? और अलग अलग स्टेजेस होते हैं आपके एजिंग के अंदर. सो अगेन इफ यू ट्राई एंड ऑब्जर्व समबडी लाइक ओल्ड एज पीपल इन योर फैमिली और इन योर नेबरहुड और एनीवेयर एल्स, तो यू विल फाइंड कि सबसे जो पहला स्टेज होता है ना एजिंग का, वेर यू विल फाइंड दी सेल्फ सफिशिएंसी. क्योंकि मोस्टली मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल केस सिनेरियो. इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने भी ओल्ड एज लोग हो आपको उनमें सभी में ये 5 स्टेज इन दिस सिमिलर ऑर्डर देखने को मिले, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशन. तो आइडियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका मोस्टली पहला स्टेज है एजिंग का, जब आप देखेंगे तो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. तो मोस्टली ये उस टाइप का एज होता है जो रिटायरमेंट वाली एज होती है ना. तो जनरली लोग आप मान सकते हो कि एजिंग उस टाइम से तो शुरू हो ही जाते हैं, उसके थोड़ी सी पहले से शुरू हो जाती है, बट टिल द टाइम द पीपल लाइक रिटायर दे आर काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इन देमसेल्फ. फिर दूसरा जो स्टेज आता है वो इंटरडिपेंडेंस का आता है कि थोड़ी बहुत आपको अपने जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पड़ने लगती है माँ बाप को, बिकॉज दे वॉन्टेड टू अकम्पनी देम, दे वॉन्टेड देयर लव एंड सपोर्ट. उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है यहाँ पे फुल डिपेंडेंसी आ जाती है कि माँ बाप अपने आप से कुछ भी चीज़ें कर नहीं पाते. दे आर लाइक काइंड ऑफ एन डिपेंडेंट अपॉन द केयर गिवर्स और देयर चिल्ड्रंस. वो वाली स्टेज होती है. और फोर्थ स्टेज बिल्कुल इन्फर्मिटी वाली स्टेज हो जाती है, और जिसके अंदर आपको क्लिनिकल या लाइफ सपोर्ट या कोई भी आपको इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज फ्रीक्वेंट होती है, या उसी के बदौलत उनकी जीवन चल रही होती है कि मतलब जितने दिन तक आप उनको मेडिकल अटेंशन दोगे दे विल सर्वाइव, एंड इफ इट इज़ नॉट बीइंग गिवन सो अल्टीमेटली यू माइट लूज देम, राइट? और वही जो फिफ्थ स्टेज होता है दैट इज़ द लाइक यू कैन से द यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट इज़ योर एंड ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ स्टेज होता है ना. एज आई टोल्ड यू, ये सिमिलर ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये सारे स्टेजेस हो, बट इट इज़ द आइडियल केस सिनेरियो. देन टाइप्स ऑफ एजिंग क्या क्या हो सकती है, कि एजिंग किस किस तरीके से हो सकते हैं. ऑब्वियस वन इज़ योर सेल्यूलर एजिंग, कि आपकी सेल एज करना शुरू कर देती है. एंड वी नो कि जब सेल एज करना शुरू कर देती है तो अल्टीमेटली जो आपके टेलोमेयर्स होते हैं, टेलोमेयर्स के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट? एंड आई एम एज्यूमिंग लाइक सिंस यू आर लाइक वॉचिंग दिस लेक्चर, आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे. सो टेलोमेयर शॉर्टनिंग के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जो एंड पोर्शन है, बेसिकली दिस इज लाइक द टेलोमेयर, राइट?
और ये टेलोमियर अगर डैमेज होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो लाइक क्रोमोसोम्स की रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो नहीं रहती, और क्रोमोसोम अल्टीमेटली रिपेयर नहीं हो पाएगा, डैमेज होता रहेगा, तो आपकी जो सेल है वो डिग्रेड हो जाएगी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो दैट यू कॉल लाइक सेल्यूलर एजिंग। और सेल्यूलर एजिंग के अपने भी अलग अलग रीजंस होते हैं दैट यू कैन सी। पहला तो आपका टेलोमियर शॉर्टनिंग होना हो जाता है, दूसरा इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो ये टेलोमियर शॉर्टनिंग, फ्री रेडिकल थ्योरी, ये सारे आपके थ्योरीज ऑफ एजिंग के अंदर आएंगे। और बेसिकली ये टाइप भी है, सो हम थ्योरीज के फॉर्म में भी इनको पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द थ्योरीज ऑफ एजिंग, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे, जो आपके जो सेल्स है उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से भी एजिंग होती है। एंड डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स, यानी कि आपके जो डीएनए डैमेजेस हो जाते हैं उसको रिपेयर नहीं कर पाने की वजह से भी आपका सेल डैमेज हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली लीड्स टू सेल्यूलर एजिंग। आपने देखा होगा ना कि जो एड्स आते हैं मोस्टली, जो आपके कॉस्मेटिक्स के एड्स होते हैं, उस एड्स में कभी कई बार ये भी दिखाया जाता है कि आप सेल डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एजिंग आपने रिवर्स कर दी, so you can have that night cream that can repair your damaged cell and all those things, right? So they are basically just marketing over the cellular aging only. Now the hormonal aging, अब hormonal aging भी एक type of aging ही होती है, मतलब this is like a part of your aging itself. तो अब hormonal aging में क्या होता है कि when you're young, when you are in your young adulthood और इवन द मेच्योर एडल्टहुड की अगर आप बात करें, तो आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अदर थिंग्स. व्हेन यू आर चाइल्ड देयर आर लाइक सर्टेन हार्मोन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्यूबर्टी एंड एवरीथिंग, राइट. और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है. हार्मोन्स के केस की अगर आप बात करें तो देयर आर सेक्स हार्मोन्स ऑल्सो इन विच यू कैन फाइंड देम इन मेन एंड वुमेन. अलग अलग होते हैं. मेन के अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलेगा, वहीं वुमेन में आपको एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा. तो वुमेन वाला कर्व अगर आप देखेंगे तो वुमेन की जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीटिंग कैपेसिटी है ये आपके मेनोपॉज होते होते तक लाइक इट फेड्स अवे. वेरएज अगर आप मेन की देखेंगे तो इनकी जो हार्मोनल सिक्रीटिंग कैपेसिटी है दैट गोज लाइक टिल द एज ऑफ 80. दैट मीन्स कि टिल द एज ऑफ 80 दे कैन रिप्रोड्यूस, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कि आपकी जो एक तो हार्मोनल सिक्रीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, एंड ऑल्सो आपका सेल भी तो एज कर रहा है, बट यू कैन हैव द कैपेसिटी दैट यू कैन रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड. बट वुमेन के केस में ये नहीं होता है. दिस लाइक अल्टीमेटली फेड्स इन एंड अराउंड योर 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज, राइट. तो ये भी आपके उम्र के साथ हो रही है, एजिंग के साथ हो रही है. अगेन आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है, एंड दैट इज वाई यू कैन सी दिस काइंड ऑफ एन रिंकल अपीयरेंसेस ऑन दी लाइक स्किन ऑफ द ओल्डर एज पीपल, क्योंकि इसमें आपको कोलेजन देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट. वहीं आपको कोलेजन जो यंग स्किन होते हैं उसमें काफ़ी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ अपीयरेंस है लाइक फॉर द यंग पीपल वो आपको देखने को मिलेगा. और इलास्टिसिटी आपको यंग स्किन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी. वहीं जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है आपकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है. सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर हार्मोनल एजिंग. नाउ अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है व्हेन यू कैन सी कि जो एजिंग होती है इट्स नॉट एन आइसोलेशन प्रोसेस इन इटसेल्फ, इट कम्स अलॉन्ग विद वेरियस अदर थिंग्स. एज यू कैन सी कि एजिंग में ही आपको सार्कोपेनिया हो सकता है. तो सार्कोपेनिया इज बेसिकली दी मसल वीकनेस, मसल लॉस हो जाता है. आपका जो हेल्दी मसल होता है जनरली दैट्स लाइक दिस, और जब सार्कोपेनिया होता है जहाँ मसल लॉस होता है तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस, राइट. सो एजिंग में आपको ओबेसिटी भी देखने को मिलती है लाइक इन सम पीपल. नॉट लाइक एवरी एजिंग पर्सन इज हैविंग ओबेस, बट मोस्टली आपको ज़्यादातर ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं जिनमें आपको ओबेसिटी देखने को मिलेंगे, स्पेशली अगर आप वुमेन के केस की बात करें, ठीक है. सो अगर आप एजिंग में ओबेसिटी और सार्कोपेनिया दोनों का इंटर रिलेशन देखना चाहते हैं देन दिस एग्जाम्पल इज़ अ वेरी गुड वन. सो सार्कोपेनिया में हमने देखा कि मसल वीकनेस और मसल लॉस होता है, ठीक है. और इसकी वजह से क्या होगा अल्टीमेटली कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम होगी. और अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो घटता जा रहा है. और साथ ही साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज करने में मदद करेगा. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, आपके बॉडी में एनर्जी एक्सपेंडिचर उतना हो नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली जो भी डायबिटीज़ या इन सब के रीजंस हैं हम उनमें से एक ये भी तो मानते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो दैट मीन्स कि ये फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल फैट इंक्रीज होगा, राइट. एब्डोमिनल फैट इंक्रीज होगा तो आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी. एंड देन
सभी कारणों की वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। और आप जब देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस का और सार्कोपेनिया का भी अपने आप में रिलेशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मसल लॉस होती है। सो दैट इज हाउ द इंटायर साइकिल गोज लाइक दिस। सो दिस इज जस्ट वन सच एग्जाम्पल। लेकिन आप देखेंगे कि एजिंग या ओल्ड एज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। सो यू कैन यूटिलाइज सच एन एग्जाम्पल इन शोइंग दोज इंटर रिलेशंस। देन इज योर एक्यूमुलेटिव डैमेज। सो एक्यूमुलेटिव डैमेज से भी एजिंग हो सकती है। अब एक्यूमुलेटिव डैमेज क्या होता है? तो बेसिकली अगेन इस एक्यूमुलेटिव डैमेज को हम वियर एंड टियर थ्योरी के फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक्यूमुलेशन डैमेज बेसिकली नथिंग इट्स सेइंग कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस अदर थिंग्स, वो चाहे आपके डीएनए डैमेजेस हो, आपके इपिजेनेटिक एल्ट्रेशंस हो, आपके जीन एक्सप्रेशंस, टेलोमेयर शॉर्टनिंग, किसी टाइप की टॉक्सिक प्रोडक्शन, उसकी वजह से आपके बॉडी में कोई चेंज आना, यूवी रेडिएशंस, इन सब से होने वाले जो रीजंस है दैट कैन कॉज दी accumulative damage and then ultimately leads to aging। आपने ये भी देखा ना कि अनहेल्दी फूड से भी एजिंग हो सकती है, पोल्यूशन से भी एजिंग हो सकती है, टॉक्सिन के एक्सपोजर से भी एजिंग हो सकती है। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजिंग वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक द ओल्ड एज बट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, राइट। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये भी चीज़ें लिख सकते हैं। देन मेटाबॉलिक एजिंग। अब मेटाबॉलिक एजिंग भी एक कारण होता है इन योर एजिंग प्रोसेस और लाइक द कॉजेज ऑफ एजिंग। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कितना अच्छा है दैट ऑल्सो डिफाइंस कि आपकी एजिंग कैसे होगी, राइट। अगर आपके क्यूमुलेटिव डैमेजेस होते जा रहे हैं एंड योर बॉडी इज नॉट बीइंग एबल टू कोप अप ड्यू टू द बैड मेटाबॉलिज्म, देन यू विल अल्टीमेटली लैंड अप बीइंग एज्ड सूनर एंड फास्टर, राइट। वहीं अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है एंड आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, ऑल्दो एजिंग का प्रोसेस ही एसोसिएटेड है मेटाबॉलिज्म के डिक्रीज से, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है, आपने उस चीज़ को कोप अप कर रखा है, देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्स टू दैट डैमेज और इससे लॉन्जिविटी बढ़ेगी। अब आप मिलन सोमन को देखेंगे, मिलन सोमन ही इज ग्रोइंग ओल्ड, उनकी एज तो बढ़ रही है, लाइक हिज बायोलॉजिकल एज इज ग्रोइंग, बट स्टिल यू कैन सी ही इज फार फ्रॉम द अदर पीपल ऑफ हिज ओन एज। सो दैट इज़ वाई लाइक ही इज मेंटेनिंग दैट मेटाबॉलिक एजिंग, और उस मेटाबॉलिक एजिंग के मेंटेनेंस से वो अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। मतलब ही जस्ट कैन नॉट रिवर्स इट और कैन नॉट जस्ट कंप्लीटली सरपास इट, बट डेफिनेटली कैन स्लो इट। सेनेसेंस, ऑल्दो हमने ओवरव्यू एक देख ही लिया है, लाइक दिस इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल एजिंग। और इसके अंदर क्या होता है, जो आपके सेल्स है दे स्टार्ट एजिंग एंड परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, राइट। Permanently stops dividing but does not die. Over the time, large number of senescent cell can build up in a tissues throughout the body, and these cells remain active and can release harmful substances that can may cause inflammation and damage to the nearby healthy cell, राइट right? यानी कि आपके सेनेसेंस के केस में आपके जो सेल्स है वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और साथ ही वो डीजेनरेट होने भी शुरू हो जाते हैं, दैट कैन कॉज लाइक हार्म टू दी अदर नेबरिंग सेल्स। अल्टीमेटली वो भी धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं। दिस इज हाउ यू कैन से कि ये नॉर्मल सेल है और धीरे धीरे विद सर्टेन स्ट्रेचेस एंड डैमेजेस इट एक्वायर सच अ काइंड ऑफ इन शेप जहाँ पे काफ़ी वर्नरेबल हो जाता है अपने आप में। सो अगेन इसका भी एक मेन रीज़न आप सेनेसेंस का भी मान सकते हैं, इट्स लाइक दी टेलोमेयर और डीएनए डैमेजेस, ये सारे ही होते हैं। सो दैट यू कैन सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेनेसेंस क्या हो सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेनेसेंस की अगर आप बात करें तो लाइक ब्रॉडली यू कैन डिवाइड इट इन द इंट्रिंसिक और द एक्सट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक के अंदर तो आपके टेलोमेयर इरोजन हो जाएगा और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपके कल्चरल कंडीशन हो सकते हैं, ट्यूमर सप्रेसर्स हो सकते हैं, डीएनए डैमेजेस हो सकते हैं या कोई ऑन्कोजेनिक स्टिमुलाइज हो सकते हैं। सो दीज कैन बी लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर सेनेसेंस। देन सेल्यूलर सेनेसेंस की अगर आप बात करते हैं तो सेल्यूलर senescence is basically nothing but the telomere erosion that we are talking about। तो इसके अंदर आप देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है सेल्यूलर सेनेसेंस के बाद। तो यू कैन सी कि लॉस ऑफ नॉर्मल सेल फंक्शनिंग, पहले सेल जिस तरीके से काम करता था उस तरीके से काम करना बंद कर देता है। देन डीजेनरेशन, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, आपके आसपास के नेबरिंग सेल का बिहेवियर अल्टर करना शुरू कर देता है। देन रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं रहती है। देन प्रमोटिंग परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन भी आपको देखने को मिलेगा व्हेन द सेल्स स्टार्टेड लाइक इन द सेल्यूलर सेनेसेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं और सेल्यूलर सेनेसेंस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इट्स नथिंग बट द टेलोमेयर इरोजन और द इंट्रिंसिक सेनेसेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं,
कॉजेज जो आपका नॉर्मल एजिंग है उसके समय के साथ रहते रहते धीरे धीरे सेनेसेंस शुरू हो जाता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। और ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च से भी देखा गया है। तो वन ऑफ दैट रिसर्च और स्टडीज दैट यू कैन कोट इज अबाउट द माइस, और उसका पूरा नाम आप जानना चाहते हैं तो दिस वॉज द माइस ऑन विच सच अ काइंड ऑफ एन स्टडीज वॉज डन टू सी कि वेदर द सेनेसेंस इज अकम्पनीड बाई द एजिंग और नॉट, राइट। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी आपकी एज रिलेटेड जो कुछ डिजीजेस होती हैं उनके वजह से भी धीरे धीरे सेनेसेंस हो सकता है, क्योंकि बॉडी में आपने देखा इन्फ्लेमेशन होता है, और जो हमने एग्जांपल लिया था इन विच द मसल गेट्स लॉस्ट, वो भी एक कारण बन जाता है, क्योंकि आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, वो डिजेनरेट हो रहा है, और सेनेसेंस तो अल्टीमेटली है कि आपका सेल्स जो है वो डिजेनरेट हो रहा है। तो दे आर लाइक काइंड ऑफ एन अकम्पनीड विद ईच अदर्स, राइट। वो वाले एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी गेटिंग डीपर इन टू इट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन यूज, राइट। थेरेपी इंड्यूस सेनेसेंस भी होता है, आपने देखा होगा केमोथेरेपी और इन सारी चीज़ों के बाद भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं जो पेशेंट्स को झेलनी पड़ती हैं, राइट। चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर लॉसेस से रिलेटेड हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दैट comes along with the therapies, especially जो कीमोथेरेपीज और इन जैसी चीज़ों के लिए होती हैं। तो दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द causes of senescence that you can say, right? And this is how you can kind of summarize like what are the various reasons can be possible reasons for the your senescence. So this is about the aging and senescence, और जो next lecture है उसके अंदर हम theories of senescence को पढ़ेंगे, सॉरी थ्योरीज ऑफ एजिंग को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ग्रोथ से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच।